اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو جو تمہیں دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ مفت میں دیا ہے، فری میں دیا ہے۔ اللہ اس کی اجرت طلب نہیں کرتا، قیمت طلب نہیں کرتا، مگر قرابت کی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت طلب کر رہا ہے، نبی کے آل کی محبت طلب کر رہا ہے۔ آئیے ان کی زندگی کا کچھ حصہ آپ تک میں پہنچا دوں۔ اللہ اللہ میرے دوست، میرے عزیزوں، آپ لوگ بھلے سنے ہوں گے لیکن ان کا فیضان جاری ہو جائے۔ 10 دن محرم میں نے بیان کیا ہے، اللہ اکبر ماشاء اللہ، کاغذ سکھی رکھے اور ان کے پورے پریوار کو سکھی رکھے، اللہ کہہ دو آمین۔ بیچارے اچھی جگہ پر آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں، آپ محبت سے سماعت کیجئے کہ میرے دوست، میرے عزیزوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے، اس وقت بادشاہ تھے، اور ایک موچی جو دمشق میں رہتا تھا، وہ دمشق سے ہجرت کر کے بصرہ میں آ گیا تھا، وہیں پر بصرہ میں ایک مکان بنایا، وہیں رہنے لگا، یعنی ایک جھوپڑی اوپڑی ڈال کے رہنے لگا، لیکن نکڑ پر وہ کام کیا کرتے تھے، جوتا اور چپل سلتا تھا۔ اللہ اکبر، تھا کیا، جات کا موچی تھا، جوتا چپل سلتا تھا۔ اللہ اللہ، ایک صبح ہوتی ہے، وہ موچی اپنے گھر سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد میں آبادی میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آبادی میں ایک دم چہل پہل ہے، آبادی میں لوگ خوش ہیں، جشن منا رہے ہیں، یعنی وہ موچی دیکھتا ہے کہ آج تک اتنے سالوں سے میں بصرہ میں رہتا ہوں لیکن ان گلیوں میں نے کبھی اتنی خوشی نہیں دیکھی ہے، لوگوں کے چہرے پر اتنی رونق نہیں دیکھی ہے، لوگوں کو اتنی خوشی میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ اور آگے بڑھا، دیکھا کہ بزرگ ایک دم جشن منا رہے ہیں، جوان بھی خوشیوں سے جھوم رہے ہیں، بچے بھی خوشیوں سے جھوم رہے ہیں۔ یہ موچی اور قریب پہنچا، ان بزرگوں کی جماعت میں پہنچا، کہا اے بزرگوں، کہا کیا، کہا اتنے سالوں سے میں بصرہ میں رہتا ہوں، اس بصرہ میں کبھی اتنی چہل پہل نہ دیکھی، اس بصرہ کے اندر کبھی اتنا شاندار ماحول نہ دیکھا، اتنا جشن لوگ مناتے ہوئے ہمارے نظروں میں نہ آئے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ اہل بصرہ ایک دم خوشیوں میں جھوم رہا ہے، اتنی خوشی منا رہا، جشن منا رہا، بات کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے سوال کرنے والے، کیا تجھے خبر نہیں ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ موچی نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، مجھے بتا دیجئے۔ ان لوگوں نے کہا یقیناً تمہیں معلوم نہیں ہے، کہا نہیں معلوم ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ سنو سنو، اس آبادی کے اندر نبی کے نواسے حضرت امام حسن آنے والے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، نبی کے نواسے آنے والے ہیں، حضرت امام حسن آنے والے ہیں، جو بادشاہ وقت ہیں وہ امام حسن کے جو ہے یہاں پر آنے والے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں پہلے بصرہ خوشیوں میں جھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو خوشی دیکھ رہے ہو، یہ جو بزرگوں میں خوشی دیکھ رہے ہو، نکڑوں پہ خوشی دیکھ رہے ہو، چوراہوں پہ خوشی دیکھ رہے ہو، بزرگوں میں جشن دیکھ رہے ہو، نوجوانوں میں جشن دیکھ رہے ہو، عورتوں میں جشن دیکھ رہے ہو، یہ نبی کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خوشی میں اہل بصرہ جشن منا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ جشن منائے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کتنے وہ خوش نصیب بصرہ کے لوگ تھے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، چل کے کہہ دو یا رسول اللہ، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے ارے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے نبی کے آل کی آمد و آمد ہے۔ اب جب یہ تنا بیچارہ وہ موچی سنا نا، اللہ اکبر، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اب دکان پہ جا رہا تھا نا، لیکن دکان پر نہیں گیا، اب وہیں سے ریٹرن ہو گیا، وہ واپس ہو گیا۔ جب واپس ہوا، اپنے دروازے پہ پہنچتا ہے، اللہ اکبر، دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دروازے پہ اس نے دستک دیا اور اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرات، اس نے آواز دیا، میں ہوں۔ جب ان کی بیوی نے اس آواز کو سنا ہے،
तो हैरान हो गई कि मेरा शौहर सुबह जाता था, मेरा शौहर सुबह जाता था तो शाम को वापस आता था। ये क्या माजरा है कि मेरे शौहर आज गए और अभी कुछ घंटे भी ना गुजरे हैं, वो वापस आए हैं। अल्लाह अकबर। दरवाजा जब खुलता, दरवाजा उनकी बीबी खोलती है, सलाम पेश करती है, देखती है कि इनके चेहरे पे रौनक नहीं है, इनके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं, घबराए घबराए से लग रहे हैं, परेशान सा चेहरा लग रहा है, परेशान सा चेहरा लग रहा है, परेशान सा चेहरा लग रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी ने कहा मेरे शौहर क्या बात है, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो। अल्लाह अकबर। उनके शौहर ने कहा, यानी मोची ने कहा अपने बीबी से कहा, हाँ आज मैं बड़ा परेशान हूँ। बीबी ने कहा क्यों परेशान हो, क्या किसी ने आपको कुछ कह दिया है या किसी से कोई झगड़ा तकरार हुआ है, यानी कोई परेशानी किस वजह से आई है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐ मेरी बीबी, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है, न किसी से कोई झगड़ा और तकरार हुआ है। तो बीबी ने कहा मेरे शौहर फिर इतना आप परेशान हो और इतने जल्दी क्यों आ गए, इतना कहना था। मेरे दोस्तों इस मोची की आंखों से आंसू बहने लगे। बीबी और घबरा जाती है, अपने शौहर के कलाई को पकड़ लेती है, ये मेरे शौहर क्या हो गया है, आपकी आंखें अश्कबार क्यों हो गई है। उन्होंने कहा ए मेरी बीबी, मैं दुकान से अभी दुकान तक पहुंचाना था, रास्ते से वापस आ गया हूँ, मैं कस्बे यानी बसरा शहर से वापस आ चुका हूँ। ए मेरी बीबी मैं बहुत परेशान हूँ। बीबी ने कहा किस वजह से आपके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मेरी बीबी बसरा के अंदर नवासे रसूल की आमदो आमद है, मेरे नबी के नवासे की आमदो आमद है, हजरत इमाम हसन तशरीफ लाने वाले हैं। बीबी ने कहा मेरे शौहर इसमें रोने की क्या बात है, ये तो और जश्न मनाने की बात है, खुशी मनाने की बात है। हम कितने तकदीर वाले हैं, खुश नसीब हैं कि हमारे सामने हमें जो है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत का शर्फ अल्लाह ने अता फरमाई है। हमें ज़ियारत होगी नबी के नवासे की, हमें ज़ियारत होगी जन्नती नौजवान के सरदार की, हमें तो खुश होना चाहिए। ए मेरे शौहर आप रो क्यों रहे। कहा ए मेरी बीबी इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आका हसन की आमदो आमद है, बादशाह वक्त की आमदो आमद है। ये मेरी बीबी इसलिए रो रहा हूँ कि काश मेरे पास अगर दौलत होता, मेरे पास अगर माल होता, मेरे पास अगर सरवत होता तो मैं भी इमाम पाक की बारगाह में हदिया लेकर हाजिर हो जाता। जमाने के लोग बड़े बड़े माल को पेश करेंगे, हदिये को पेश करेंगे, हीरे जवाहिरात को पेश करेंगे। काश अगर अल्लाह ने मुझे माल दिया होता, अल्लाह ने मुझे दौलत दी होती, अल्लाह ने मुझे सरवत दिया होता तो मैं भी हदिया लेकर नबी के नवासे की बारगाह में उनके कदमों में मैं भी पेश करता। मैं अपने गुर्बत पर आंसू बहा रहा हूँ, काश मेरे पास भी होता। अल्लाह। और बीबी ने कहा मेरा शौहर घबराने की बात नहीं है, ये मेरे शौहर आंसू को रोक लो। अरे वो कोई दुनियावी बादशाह नहीं है। क्या फरमाया। बीबी ने कहा वो दुनियावी बादशाह नहीं है, वो तो वलायत के बादशाह है, वो तो इमामत के बादशाह है। अरे जो तुम लेकर जाओगे वही वो कबूल करेंगे, इसलिए कि दुनिया के लोग दुनियादार के गोद में पलते हैं, लेकिन वो पले हैं अहमद मुख्तार के गोद में, नबियों के ताजदार के गोद में। वो अमीर और गरीब नहीं देखा करते हैं। ऐ मेरे शौहर घबराओ ना, घर में देखती हूँ कुछ मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। बीबी अंदर दाखिल होती है, पूरे घर का कोना कोना छान मारती है, लेकिन एक सुई तक ना मिलती है। गुर्बत का आलम यह है, हजारों साल पहले की बात है। आज से आप 50 साल पीछे जाएंगे तो मेरे दोस्तों गांव में अगर 100 घर रहा होगा तो मेरे दोस्तों 80 घर के ऐसे लोग थे कि पेट भर खाना आज से 50 साल पहले नहीं मैसर होता रहा। आज 50 साल पहले, आज तो मेरे दोस्तों सब रुस्तमे हिंद है। आज क्यों थोड़ी कहा था कि हम तो उससे कम हन, कहीं हम तो उससे कम थोड़ी हन, खाली दीन में कम रही, बकिया दुनियादारी में अगर कहूँ कौनो बात हो जाए तो कहीं तो उससे कम ना है। लेकिन हाँ अगर दीनदारी में कहूँ रही तो ठाए ठाए फिस हो जाएगा, तब कम हो जाएगा। लेकिन दुनियादारी में कहेगा हम तो उससे कम थोड़ी हन, तो अगर एक हाथ हो तो हम 1.5 हाथ हन। लेकिन हजरात आज से हजारों साल पहले की बात है। बीबी ने पूरे घर को टटोला, लेकिन एक सुई तक ना मिलती है। अपने शौहर के सामने आई, अब बीबी की भी आंखें अश्कबार हो गई, आंसू बहने लगे। शौहर ने कहा मेरी बीबी अब क्या तुझे हुआ। कहा मेरे शौहर मुझे, मैं पूरे घर को छान मारी लेकिन घर के अंदर तो एक सुई तक नहीं है। अल्लाह अकबर। अब मियां बीबी बड़े परेशान है। फिर बीबी ने कहा, फिर बीबी
कहती है कि मेरे शौहर घबराओ नहीं, अब मेरे पास माल और दौलत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें हुनर दिया है। अरे जमाना हीरे जवाहरात पेश करेगी, आपकी बारगाह में माल और दौलत और हदिया पेश करेगी। ए मेरे शौहर, मेरी आरज़ू ये है कि आका हसन की बारगाह में अल्लाह ने तुम्हें हुनर दिया है, तुम आका हसन के लिए जूती तैयार करो, यानी जूता बतौर नजराना आपकी बारगाह में पेश करो। अल्लाह अकबर। कहा कि जूता कहाँ? हाँ, ये है उनकी बारगाह में पेश करना। अब मेरे दोस्तों, बीबी ने अपने शौहर को मना लिया, मोची था ही, अब वो राजी हो गए। अल्लाह अकबर। अब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जूता बनाना वो शुरू करते हैं। तारीख बताती है, आज हम लोग तो दम भरते हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उन पर जान फिदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इमाम हसन हुसैन का सच्चा आशिक क्या करता है? जूते में उस वक्त तक एक टाका नहीं लगाता है। हजरात, एक टाका लगाता है जूते में तो 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ता है। अल्लाह अकबर। 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ता है तो एक पहला टाका लगाता है, फिर 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ता है तो दूसरा टाका लगाता है, फिर 2 रकात पढ़ता है, तीसरा टाका लगाता है। यानी कि वो जूता तैयार करने में मियाँ बीबी ने पूरी रात लगा दी और पूरी रात नमाज़े नफिल पढ़ते रहे। 2 रकात, एक टाके पर 2 रकात, हजारों रकात नमाज़े नफिल पढ़ी होगी। हम तो दम भरते हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, लेकिन हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। नफिल तो छोड़ दीजिए, नफिल की नमाजें मत बात कीजिए मेरे दोस्तों। हम सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान हैं, लेकिन अपने सर को झुकाने के लिए कह दो तो मेरे दोस्त हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, दम भरते हैं। बहुत बड़े शैतानी हैं, हम बहुत बड़े उनके दीवाने हैं। अरे उनके आशिक वो थे कि एक आप सुई, एक आगे जब धागा लगाते हैं तो 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर दूसरा धागा लगाते हैं। पूरी रात मियाँ बीबी ने एक जूता तैयार करने में लगा दिया। पूरी रात हो गई, नमाज पढ़ते पढ़ते जूता तैयार हुआ। फजर की अजान होती है। अल्लाह अकबर। शौहर और बीबी दोनों लोग, मोची और मोची की औरत नमाज पढ़ लेती है। नमाज पढ़ने के बाद में वो मोची वो तोहफे को उठाता है, लेकर बसरा यानी कस्बे के अंदर दाखिल होता है। देखता यह ऐलान हो रहा है, ऐ लोगों सफ़े बांध कर खड़े हो जाओ, नबी के नवासे हजरत इमाम हसन की आमद है। अल्लाह अकबर। जमात लगी है, कतार लगी है, लोग अपने अपने तोहफे और माल दौलत को लेकर अल्लाह अकबर कतार में लगे हैं। उसी कतार में बेचारा जाकर ये मोची भी अपने जूते को लेकर खड़ा हो गया। अब जैसे खड़ा हुआ तैसे ऐलान हो रहा, ऐ लोगों जगह दे दो, ऐ लोगों जगह दे दो। मुल्क शाम का बादशाह 1000 सोने की अशरफियों की थैली और बहुत ज्यादा तोहफा, ये तोहफे का तश्त हजरत इमाम हसन की बारगाह में बतौर हदिया पेश करने आ रहा है। अल्लाह अकबर। जब ये आवाज रखते बादशाह वक्त के, वो भी उसी लाइन में आकर अल्लाह अकबर खड़े। अब पूरी लाइन लगी है, उसी में ये खड़े। अब जब ये मोची देखा, अपने नजर को उठाया, एक से एक तोहफा लेकर लोग खड़े हैं, एक से एक तोहफा लेकर खड़े हैं। और ये बेचारा जूता लेके खड़ा था तो इसे अपने उस हदिये पर जो लेकर आया था इसे शर्म लगने लगी। और जब शर्माया ना तो फौरन बेचारा जो आगे करके जूता खड़ा था लेके ना, अब वो जूता फौरन पीछे करके पीछे चादर में छुपा लिया, यानी वो चीज पीछे ले लिया ताकि कोई देखे ना, मेरी बेइज्जती ना हो जाए कि ये जूता लेकर आया है। वो जल्दी से बेचारा पीछे चादर में छुपा के पीछे खड़ा हो गया। लोग आते रहे, तोहफा पेश करते रहे, मिलते रहे, तोहफा पेश करते रहे, मिलते रहे। तारीख बताती है कि मेरे दोस्त पूरे मजमे के लोग मिलते हैं इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और सब के सब तोहफा पेश कर देते हैं, सब के सब मिल लेते हैं। आका हुसैन की बारगाह में कदम बोसी कर लेते हैं। कोई नहीं बचा उस मैदान में, अकेले तरे तनहा बेचारा ये मोची खड़ा है। आका हसन ने अपने जब निगाह को उठाया है, अल्लाह अकबर, उनकी नजरे करम जब उस पर पड़ी है तो उसके तो यारे नारे हो गए। कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इसलिए जब उनकी नजर पड़ी है ना उस मोची पर तो शायर का कहता है, दीवाने को तो सारा जहां देख रहा है, देख रहा है। मचल के कह दो या हुसैन, दीवाने को तो सारा जहां देख रहा है, देख रहा है। दीवाने को तो सारा जहां देख
धीमान खुदा जान कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है। आपने नजर को उठाया, सीधे मोची पे पड़ती है, और जब मोची पे पड़ी तो आपने कहा हो अल्लाह के बंदे, अरे तो दूर ही खड़ा रहेगा, जो तोहफा लेके पीछे चद्दर में छुपा के रखा है मेरे लिए, वो कब पेश करेगा? पूरा शहर पेश करके चला गया, और तू अभी छुपा के लेके वो जूता जो चद्दर में खड़ा है वो कब मुझे पेश करेगा? ये तना सुनना था, उसकी चीखें निकल गई। मेरे दोस्तों, सालों कतर रोता हुआ उनके कदमों में गिर गया और कहा आका, अरे जब निवासे के इल्म का ये आलम है, जब निवासे की शान ये है, तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म की शान क्या होगी? अल्लाह अकबर। उन्होंने जूते को दिखाया, यानी उनके इल्म गैब को देखो। ये इल्म गैब किसको है? मेरे दोस्तों, इमाम हसन को क्या कहा? वो जो रात भर तू और तेरी बीबी जूता तैयार करने में रात भर गुजार दिया, जूता तैयार करने में, और नमाज़े नफिल पढ़ते पढ़ते एक धागा लगाया, 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़ा, तो वो कीमती जूता मुझे पेश नहीं करेगा? इतना करना था। मेरे दोस्तों, कदमों को चूम लिया, कहा आका, अरे जब आपकी ये शान है तो आपके नाना मुस्तफा की शान क्या होगी? अल्लाह अकबर। आज के कुछ नस्ल के बदमाश औलादों ने नबी के बारे में आपके इल्मे गैब का इनकार कर रहे हैं। ये बोलो, आले नबी की शान ये है कि रात भर मोची क्या किया और कैसे जगह क्या किया, वो आका हसन बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब कदमों को चुमा है ना, शान ने नक्शा खींचा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, शाहाना जमाने की झोली, कह दो या हुसैन। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा हाँ, क्या लेकर आया है? जूता, वो मुझे पेश कर। अब जूता पेश किया, आपने कहा पेश मत कर, मेरे पाँव में पहना दे। हजरात अब अपने हाथों, यानी उनके अपने पाँव को वो हाथ में लिया, कौन? मोची हाथ में लिया, और बड़े प्यार से जूते को पहनाया। आपने कहा कि वो अल्लाह के बंदे, अरे तेरा तोहफा तो मुल्क शाम के बादशाह के तोहफे से कीमती है। सुभान अल्लाह। उसके अशरफियों से ज्यादा कीमती तेरे ये जूता है, इसलिए कि वो बादशाह अपनी बादशाह और दौलत के बुनियाद पर अशरफियत सोने की पेश की है, लेकिन तेरे ही जूते में मोहब्बत है। तू रात भर मोहब्बत से बनाया है। रात भर मोहब्बत में जगना और 2 रकात नमाज पढ़ना आसान नहीं है। दौलतमंद तो दौलत दे सकता है, लेकिन वक्त नहीं दे सकता है। आपने कहा कि मुल्क शाम के बादशाह से कीमती तेरा ये जूता है, सबसे कीमती तेरा ये तोहफा है। अल्लाह अकबर। जब आपने कबूल किया ना, कबूल करने के बाद में उसे दुआएं दी, सीने से लगाया, कौन? मेरे आका हुसैन। जात का क्या मोची है, हम पठान साहब, कोई गरीब आ गया तो हम उसे सीने से नहीं लगाते हैं, वो सलाम करते। कितने लोग अगर दौलतमंद सही से बेचारे गरीब के सलाम का जवाब तक नहीं देते हैं। अगे मालिकुम अस्सलाम, वो बेचारा कहा गए हाँ, अगर क्यों उनके बराबरी का जाए तो दुर्वस देखिए, आओ कुर्सी लाओ बैठो। हजरात, ये हमारा हाल है, लेकिन जो जन्नती नौजवानों का सरदार है उसके यहाँ मोची पहुंचा है। मोची नहीं बल्कि मोची को बुलाकर आप खुद सीने से लगा रहे हैं। ये मेरे सरकार की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। अब जब सीने से लगा लिया ना, अब उसके बाद अब वहां से जाने लगा तो आप पूरी बुलाते हैं, जा तू कहाँ रहा है, इधर आ। जब इधर आया, कहा तू जा कहाँ रखा? आका, मुलाकात हो गई, अब तो मैं जाने वाला था। उन्होंने कहा तू जा नहीं बल्कि ये तमाम तोहफे को इकट्ठा कर। अब तमाम तोहफे को मोची इकट्ठा करता है, अशरफी की थैली को इकट्ठा करता है। तो हजरात, मालों का पूरा अंबार लग गया, ढेर लग गया। अगर एक आदमी को इधर खड़ा कर दिया जाए, दूसरे को उधर, तो इतना माल जमा हो गया था कि ना इधर वाला उधर वाले को देख पाता, ना उधर वाला इधर वाले को। आकाशन फरमाते हैं, मेरे आशिक, मेरे गुलाम, कहाँ जा रहा है? ये तमाम माल
مال تیرے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے میرے غلام جو تم نے دیا، تیرا تحفہ میں نے قبول کیا ہے، اب میرا تحفہ تو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب بولو کتنا غریب تھا لیکن اتنا مال دے دیا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی مالدار ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے دے دیا سارے تحفے تیرے ہیں، اب جب جمع کیا تو موچی سوچنے لگا یا اللہ یہ اتنا مال ہے کہ ہم لئی نہیں جا پائی تو جائی کیسے ملوا۔ پھر آقا حسین نے امام حسن نے کہا ادھر آ ادھر آ، اب تو جلدی مت کر، سن لے یہ مال تیرا ہے نا، وہ جو اونٹوں کی قطار باہر دیکھ رہا ہے نا یہ سارے اونٹ تیرے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ اونٹ بھی تیرے ہیں، یہ سارے مال اونٹ پر لاد لے۔ اللہ اکبر۔ جب سارے مال اونٹ پر لاد لیتے ہیں پھر جانے لگا، پھر آپ نے بلایا ارے تو جا کہاں رہا ہے، قریب آ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ جو تم نے تحفہ دیا ہے میں اس کے بدلے میں تجھے کم دے سکا، اتنا نہیں دے سکا، یعنی کہ جتنا قیمتی تیرا تحفہ ہے اتنا تو میں تجھے نہ دے سکا، لیکن دیکھ لے تو اور تیری بیوی نے جو رات بھر جگ کے اور نماز نفل پڑھ کے محبت سے ایک جوتا نماز رسول کے لیے، نبی کے نمازے کے لیے تم نے پیش کی ہے، میں اس کی قیمت دنیا میں تجھے دے نہ سکا، لیکن وعدہ کرتا ہوں میدان معاشر میں اس کے بدلے میں اپنے نانا جان سے تیری شفاعت کرا کے اپنے ساتھ تجھے اور تیری بیوی کو جنت میں داخل کراؤں گا، اس لیے کہ تم نے نبی کے نواسے کو ایک جوتا پیش کیا ہے۔ حضرات تو وہ ہیں، شاعر کیا اچھے انداز میں کہتا ہے مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، چل کے کہہ دو یا حسین، مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار کا ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے مگتے کا بھلا ہو۔ آیا تھا غریب تھا لیکن اب واپس گیا مالدار ہو گیا، اور صرف دنیا کی دولت ہی نہیں بلکہ انہیں جنت کی بھی دولت دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو جو 1 روپیہ حسنین کریمین کے نام پر دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے، دیکھیے دیوانے 10-10 دن پروگرام کرتے ہیں، ان کے نام پر کھچڑا بناتے ہیں، ان کے نام پر سبیلے پلاتے ہیں، ان کے نام پر شربت پلاتے ہیں، ان کے نام پر قرآن خوانی کرتے ہیں، ان کے نام پر قرآن خوانی کرتے ہیں، ان کے محبت میں روزے رکھتے ہیں، ان کی محبت میں میرے دوستو تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بیکار نہیں جائے گا بلکہ جتنے ان کے دیوانے اور غلام قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کو حسنین کریمین کا صدقہ میدان محشر میں عطا کیا جائے گا، انہیں ملے گا۔ اس لیے ہم سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، الحمدللہ ان کی یادیں مناتے ہیں، ان کا جشن مناتے ہیں، ان کے نام پر میلاد کرتے ہیں، ان کے نام پر اپنے گھروں پر نظر و نیاز کھانا بنا کے ان کے نام پر پیش کرتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ ہمیں دنیا کی جو اللہ نے دولت دیا ہے یہ دنیا میں اس میں برکت ہو جائے، اور ان کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو جنت میں انشاءاللہ میدان محشر میں انہیں نبی کی شفاعت مل جائے، اور حسنین کریمین کے صدقے میں جنت میں اللہ ہمیں اور آپ کو جگہ عنایت فرما دے۔ میرے دوست میرے